मामला बेटा बेटी सी मेरी वो आई सी रिपोर्टा कराउण इन्हां ऑपरेशन करना TLC 20,000 ਵਾ ਇਹਨਾਂ 15 ਘੱਟ ਤੋਂ 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇਣੀ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਿਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ सीना तड़पदी सी उदों मैं मौके ते वेख्या इन्हां ने उन्हां ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ दसिए भी मरीज डेड। ये ज़रूर था कि 5 तारीख के बाद हमने ये प्लान किया था एज IMA पूरे हरियाणा में कि 5 तारीख को वो हो सकता है कि वो न्यूज़ सुन के उन्होंने हम पे प्रेशर डाला हो कि अभी कर दो जल्दी से, ये मेरे को नहीं पता खैर इन चीज़ों का। वो पब्लिक की थोड़ी सी ये थी वरीड थी कि सर्जरी अगर बनती है तो पहले करा ले, अगर स्ट्राइक होती है तो उसके बाद हमने उसको एडमिट किया। पहली बात तो दिमाग में यही जाती है कि सर्जरी हुई है रिसेंटली, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उल्टा मार के बचाई फिर इस गल पैसे आ जा दो कार्ड का है ना, कार्ड का इशू है, कार्ड का कट ना फटाफट जाके ऑपरेशन कर देता साढ़े तो पैसे आ जाने जिधर दी मर्जी आओ जिधर दी मर्जी आओ ठीक है तुसी कितना ऐसी पेशेंट जिधर दी मर्जी आओ तुसी जनाब ने जो मर्जी करो नहीं सी करना चाहिए बिना वारसा तो मामला बेटा बेटी सी मेरी वो आई सी रिपोर्टा कराउण इन्हां ऑपरेशन करता ते फिर छुट्टी मिल गई घरे गई चली स्टड पाया सी पैप जी कोई उहदे नाल उहनूं दर्द महसूस होया उल्टियां दस्त लग गए ते फिर अगले दिन एडमिट करा गया ते फिर हुण कल परसों दा उन्हें सानू आदे सी भी तुसीं इहनूं बठिंडे लै जाओ ओ करो वाह करो। मैं क्या भी मेरे को कोई पहुँच नहीं, सरपंच साहब नाल इहने भी आख्या भी इन्हें कोई जगह तो नहीं कित्थे जाइए मैं भी तुसीं इस सारा कुछ करना है जो भी बचाउणी तां मारनी तां कोई इत्थे करो आप पुछ लो सरपंच इहनां भी इहो गल सानू इन्हां ने कहा भी इहनूं काला पीलिया हैगा ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ TLC 20,000 ਵਾ ਇਹਨਾਂ 15 ਘੱਟ ਤੋਂ 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ 10:30 ਵਜੇ ਕਰੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ 2 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 7 ਦਿਨ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਿਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੜਪਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਡੈਥ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਸ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਧੁੱਪੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਆ 9 9:30 10 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 11:30 ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਡੈਡ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਜੀ
ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 11-12 ਵਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। 2 ਘਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ 2 ਘਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ 11 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPR ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ECG ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ECG 'ਚ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡ ਆ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CPR ਕੀਤਾ, ECG ਕੀਤੀ, 20 मिनट बाद कहते डेड। पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मिसेस कुलविंदर कौर 38 ईयर्स ओल्ड फीमेल, ये हमारे पास आए थे 3 तारीख को। राइट साइड में इनको कमर में दर्द था और इनका पहले हिस्ट्री ये था कि पहले इनको बार बार स्टोन बनते हैं, तो इनका लेफ़्ट किडनी ऑलरेडी श्रंकन था और राइट किडनी बेटर किडनी लग रहा था और उसी में स्टोन था और उसी का पेन था। तो CT स्कैन करा के देखा तो प्लान किया गया कि इसका दर्द के कारण उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया। पेशेंट के रिलेटिव्स कंसेंट लिया गया, उन्होंने बोला ठीक है ऑपरेशन दूरबीन से होगा या चीरे से, तो हमने दूरबीन से इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक ठाक था, तो डिस्चार्ज हो गया था। तो अल्ट्रासाउंड में भी कोई इश्यूज़ नहीं निकले, एब्डोमेन बिल्कुल ठीक था, अंदर किडनी ठीक थी, स्टेंट अपनी जगह पे पड़ा हुआ था, कोई पथरी फंसी हुई बची नहीं थी और ना ही कहीं आसपास ब्लीडिंग थी। फिर हमने जब वापस बुलाया पेशेंट को, तो मैंने डॉक्टर विनय को बुलाया, फिजिशियन है यहाँ पे, कि डॉक्टर विनय मेरे को अपना तो कुछ ठीक लग रहा है लेकिन इसको चेस्ट में कुछ इशू ना हो, क्यों सांस में दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर विनय ने उसको एग्जामिन किया। परिवार का कहना है कि परिवार को कोई किसी तरह का कॉल नहीं की, कोई सूचना नहीं दी गई जब ऑपरेट किया गया। अटेंडेंट उनके साथ था और ना ही परिवार के पास इंफॉर्मेशन थी ऑपरेट की। ऐसा कभी नहीं होता। पेशेंट खुद से अकेले से चल के कभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने नहीं आता, उनका साथ में भाई था, उसके यहाँ पे साइन है। तो जो भी इसके साथ आए थे है ना, उनमें से इनका एक भाई था जिसने साइन भी किए हैं और उसी की रजामंदी के साथ, और पेशेंट की वो दर्द में चिल्ला रही थी कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो उसके भाई जो साथ में आया हुआ था उसी ने बोला कि आप डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो, और उसी ने कंसेंट दी है और उसी के साइन है। और उसने नहीं, ये तो जी इनके तो मैं क्या बताऊँ अब, है ना, इसका बैकग्राउंड भी आप समझो, है ना। ऑपरेशन के बाद भी है ना, जब अब देखो फैक्ट्स तो तभी सामने आएंगे ना जब, क्योंकि इनके वहाँ पे साइन है। एक पेशेंट अकेला आके ऑपरेशन करा के कैसे जा सकता है? वो दीपक है, उसका नाम क्या था एक बार दिखाना। दीप ऑपरेशन किस समय हुआ था डॉक्टर साहब? लगभग दोपहर के टाइम पे हुआ था। 3 तारीख को हुआ था। उसी समय ये साइन किए गए थे? हाँ जी। दीप सिंह है ब्रदर। दीप सिंह है जी। सर बताया जा रहा है कि जो आयुष्मान था उनको बोला कि आज की डेट बची है। नहीं जी, ये ऐसा परिवार की तरफ से बोला गया। परिवार कुछ देखो ना, तो आयुष्मान एक ही दिन के लिए बचा है या रहता है ना, ये बातें पता नहीं कहाँ से ये लोग सुन के कुछ भी बोल रहे हैं बाद में, है ना। इतना जरूर है, इन्होंने हो सकता है कि गांव में इनको किसी ने बोल दिया हो ऐसा, क्योंकि हमारा एक प्रपोजल तो था स्ट्राइक। ये जरूर था कि 5 तारीख के बाद हमने ये प्लान किया था एज IMA पूरे हरियाणा में कि 5 तारीख को, वो हो सकता है कि वो न्यूज़ सुन के उन्होंने हम पे प्रेशर डाला हो कि अभी कर दो जल्दी से, ये मेरे को नहीं पता खैर इन चीज़ों का। जैसा आपने बताया कि ऑपरेट बिल्कुल सही हुआ था, तो उसके बाद ऐसा क्या सिम्टम लगे कि? यही तो ऑपरेशन ठीक ठाक होने के बाद घर गया है मरीज़, उसके 48 घंटे के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ़ आई, तब हमने तुरंत जांच की। विदिन 10 मिनट्स उसका अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन चेस्ट हो गया था। CT स्कैन में निमोनिया आया था, बायलैटरल दोनों तरफ निमोनिया आया हुआ था, उसी की वजह से सांस में दिक्कत थी और उनको BP भी कम। सर एक आरोप और आ रहे हैं कि जो पेशेंट था उसकी रात को ही डेथ हो गई थी, बट परिवार को नहीं पता। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ये है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर
सर्जरी नहीं करेगा। अगर एक पेशेंट आ गया कि मेरी सर्जरी करो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इतना बेवकूफ़ नहीं है। और ये कैश में नहीं हुआ था, आयुष्मान में ऑपरेशन हुआ था। आयुष्मान में पहले कंसेंट होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि उसके साथ कोई नहीं था। उसके साथ उसका भाई था एक। अब देखो, हमें नहीं पता वो रिश्तेदारी में चाचे का लड़का था या कौन था, उन्होंने कंसेंट दिया है, पेशेंट पेन में था। दूसरी बात ये है कि आयुष्मान जी अगले दिन बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो वो एक बात थी कि IMA की तरफ से आया हुआ था, वो सारी पब्लिक को भी पता था, वो न्यूज़ में भी आ गया था। वो पब्लिक की थोड़ी सी ये थी, वरीड थी कि सर्जरी अगर बनती है तो पहले करा ले, अगर स्ट्राइक होती है तो 6 तारीख को, यानी कि 2 या 3 दिन के बाद पेशेंट दोबारा हमारे पास इमरजेंसी में आता है शाम को। उस टाइम पे उसको बुखार भी था, उसकी सांस भी फूल रही थी, उसको खांसी भी थी और वॉमिटिंग भी हो रही थी। मैंने देखा उसको इमरजेंसी में। उसके बाद हमने उसको एडमिट किया। पहली बात तो दिमाग में यही जाती है कि सर्जरी हुई है रिसेंटली, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सर्जन का भी ये फर्ज बनता है कि दोबारा सर्जरी कर दें, कुछ भी कर दें पेट को देखने के लिए कि कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की तो नहीं है। और वहाँ बिल्कुल क्लियर वो उसकी रिपोर्ट लगी हुई है। उनसे हमने डिटेल में, डॉक्टर साहब ने भी बात करी, मैंने भी बात करी, कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है कोई। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि स्टंट अपनी प्लेस में है और किडनी की कोई वहाँ पे कोई इन्फेक्शन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। फिर हमने उसका CT स्कैन कराया, तो वो उसकी रिपोर्ट भी है, फिल्म्स भी हैं, वो भी आप किसी भी दुनिया के डॉक्टर को दिखाएंगे, वो प्रूफ में होता है कि दोनों साइड में निमोनिया आया हुआ है, बायोलेटरल निमोनिया था। फिर हमने पेशेंट को ICU में एडमिट किया, ऑक्सीजन शुरू करी उसकी, एंटीबायोटिक स्टार्ट किए। फिर एक और टेस्ट होता है जिसको प्रोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, वो हमने टेस्ट भेजा प्रोकैल्सिटोनिन। वो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के आया था। वो भी एक प्रूफ करता है कि बॉडी में इन्फेक्शन थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ये शो करता है। और वो CT स्कैन शो कर रहा है कि वो इन्फेक्शन लंग्स में थी। तो हमने निमोनिया की लाइन पे उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया। पेशेंट शॉक में भी था, पेशेंट निमोनिया के बाद सेप्टिक शॉक में भी गया है, सेप्सिस में गया है। उसके बाद एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट रिनल फेलियर इसको बोलते हैं। पेशेंट को यूरिन भी नहीं आ रहा था। जब मैं रात को दोबारा यहाँ पे देखने आया हूँ तो कोई अटेंडेंट नहीं था। पेशेंट इतनी सिक कंडीशन में था, मैं अपने स्टाफ पे भी गुस्सा हुआ कि तुम अटेंडेंट के बिना कर रहे हो। तो कोई हमने उसको फ़ोन भी किए, उसकी फाइल पे नंबर दे के, और वो वहाँ से जवाब आता है जी हमारे घर पे कोई नहीं था जी, हम सुबह आएंगे। पेशेंट यहाँ पे इतना सिक है, हमें तरह तरह के टेस्ट कराने, कंसेंट लेने, कोई नहीं था। लेकिन फिर भी हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद नहीं किया, चलता रहा ट्रीटमेंट। संडे को मैं फिर आया यहाँ पे देखने के लिए, तब भी कोई अटेंडेंट नहीं था। फिर हमने, डॉक्टर साहब भी आ गए, फिर हमने बात करी, बुलाया। फिर हमने गांव के सरपंच साहब को बुलाया, फिर सरपंच साहब ने इनके फादर साहब को बुलाया। उस दिन हमने पहली बार देखा कि ये फादर साहब है। कहते जी नहीं, आप इलाज करिए, यहीं पे करिए, हम यहीं पे करवाएंगे, जो होगा हम यहीं पे करेंगे। तो ठीक है, मैं और डॉक्टर मित्तल तब से लगे हुए हैं। हमने फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये बहुत पुअर थे, सरपंच साहब ने भी कहा जी बहुत पुअर हैं, कोई बात नहीं, आप इलाज करिए, आप अच्छी से अच्छी दवाई दीजिए, टेस्ट कराइए, पैसे कोई बात नहीं आ जाएंगे, मैं बैठा हूँ। जब सरपंच साहब ने भी हमें सपोर्ट करी होगा तो हमने भी सोचा यार कोई बात नहीं, 25 पेशेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, 24 हमें पैसे भी दे रहे हैं, चाहे आयुष्मान के थ्रू जा रहे हैं चाहे कैश के थ्रू। एक पेशेंट नहीं भी देगा तो या बाद में भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल जारी रखा। लेकिन इनके अटेंडेंट का फिर भी रवैया वैसा ही था। जब भी मैं राउंड पे आऊँ अटेंडेंट नहीं मिलते थे। एक आधा बंदा कोई मिलता था, वो कहता जी मैं तो दूर से दूर, फ़ोन आया हुआ आगे से आगे, बुलाया, गालियाँ निकाली, जैसे मर्जी वो आए। और उन्होंने भी फिर कंसेंट देने से मना कर दिया। मैं कहा जी फिर आप ले जाओ। कहते जी मैं लेके भी नहीं जाऊँगा। मतलब ये आप एटीट्यूड देखिए कि मैं पेशेंट को भी नहीं लेके जाऊँगा, मैं वेंटिलेटर के कंसेंट भी नहीं दूँगा। उसके पिपल्स भी देखे जाते हैं, उसका रेस्पिरेशन भी देखा जाता है, उसका हार्ट भी देखा जाता है। इनको लगा कि उसको सांस नहीं आ रहा, वेंटिलेटर डाले भी पेशेंट एक्सपायर हो गया, लेकिन पेशेंट की हार्ट बीट तो आ रही थी ना, पेशेंट के पिपल्स रिएक्ट कर रहे थे, पेशेंट स्पोर्ट पे था, तो उसको हम डेड नहीं कर सकते। वो डॉक्टर साहब, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे एक आपके स्टाफ की तरफ से भी हुई है कि परिवार को ये बोला गया है कि पेशेंट रात को ही डेड हो गया था। नहीं, परिवार का ये आरोप ये कहना है कि जो वहाँ पर मौके पर जो आपका स्टाफ था उनके द्वारा कहा है कि हमें ये बोला गया कि हम आपको बता नहीं सकते, पर वो रात को ही एक्सपायर। नहीं, ऐसा कोई हमारी, ये देखो हम कोई इससे पैसे जमा करवा रहे थे, हमारी क्या मंशा थी। अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई मंशा होती है ना। स्टाफ लगभग 11:30 बजे सुबह मेरे साइन हुए हैं, मैंने खुद जाके देखा है, सारे वाइटल्स जब चेक किए हैं कि प्यूपिल्स भी रिएक्ट नहीं कर रहे, हार्ट बीट भी नहीं है, वॉलंटरी रेस्पिरेशन भी नहीं है, कोई पेन रिस्पॉन्स भी नहीं है, तब जाके मैंने उसको डेड डिक्लेयर किया। एक परिवार का लास्ट आरोप ये भी था कि उनको बताया नहीं गया, वो लोग अंदर थे और जो डेड बॉडी है उसको सीधा बाहर धूप में एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। नहीं, देखो पता है ये सब बेकार बातें हैं। पेशेंट के अटेंडेंट अंदर थे, मैंने उनको बताया कि अब ये एक्सपायर हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं है। 3 लोग खड़े हुए, इसके फादर साहब भी थे, सब थे, तब बताया गया। अब पेशेंट अगर डेड है तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल से हमें शिफ्ट ही करना है ना।